गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद एहसान, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेफ्टी फैकल्टी। आज हम लोग क्लासरूम में हैं। यहाँ फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग दे दिया गया है। आज हम लोग फायर ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसको मॉक ड्रिल भी कहते हैं। तो इसमें ये जितने सेफ्टी के स्टूडेंट्स हैं आज वो करके दिखाएंगे। जैसे एक फायर का सायरन बजाएंगे एक स्टूडेंट, दूसरे फिर फायर स्टेशन को कॉल करेंगे। उसके बाद फायर फाइटर जितने हैं फायर एक्सटिंग्विशर और फायर होज लेकर जहाँ ड्रिल होना है वहाँ लेके जाएंगे। और बाकी फर्स्ट एडर्स और सेफ्टी ऑफिसर्स, फायर मार्शल, फायर चीफ सभी लोग इसमें हैं। सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सायरन बजाइए। फायर ड्रिल स्टार्ट। हाँ बोलिए। हेलो, मैं जीटीआई से नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ। जमशेदपुर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग चुका है। कृपया आप फायर फाइटर को भेजिए। आज़ाद बस्ती मांगूस और आज़ाद बस्ती रोड नंबर 7। जल्दी फायर फाइटर को भेजिए, जल्दी भेजिए, आग लग चुका है। ओके ओके, सेफ्टी ऑफिसर स्टार्ट। बिल्डिंग में आग लग चुकी है, आप एवैक्यूएट कीजिए, एवैक्यूएट कीजिए। Fire safety and CPR mock drill, real practical training experience. At Gulf Training Institute, a comprehensive fire safety and CPR mock drill was conducted to prepare students for real-life emergency situations. The main objective of this drill was not only to provide theoretical knowledge, but also to give students hands-on practical experience so that they can confidently handle emergencies at actual work sites. During this mock drill, all students were assigned different responsibilities according to their roles. Some students performed the role of firefighters, some acted as fire marshals, while others took responsibility as safety officers. The safety chief took attendance of all students and ensured that no one was left behind and everyone actively participated in the drill. Each student performed their role with full seriousness, discipline, and responsibility. The students acting as firefighters and fire marshals practiced how to control fire, use fire extinguishers correctly, and manage emergency situations in a safe and organized manner. They demonstrated how quick decisions and correct actions can prevent major accidents and save lives. The students performing the role of safety officers ensured that all safety rules and procedures were strictly followed during the drill. They guided other students, maintained safe distances, and continuously monitored the situation to avoid any risk. The safety chief coordinated the entire team and made sure that every step of the drill was executed according to the plan and under safe conditions. This mock drill was conducted in a way that closely matched real emergency situations, allowing students to experience the pressure and responsibility of working in critical conditions. The students showed excellent teamwork, leadership skills, and discipline throughout the exercise. One of the biggest achievements of this training was the significant increase in students' confidence. Now, they not only understand the rules of fire safety and CPR, but they also know how to apply them practically in real-life situations. Through this training, students learned that safety is not just a rule, but a life-saving responsibility. This fire safety and CPR mock drill was not just a training activity, but a valuable learning experience for the students' professional and personal lives. Such practical training sessions at Gulf Training Institute play a vital role in making students job-ready, site-ready, and safety-ready, so that they can work confidently and professionally in India or in Gulf countries. सर, वर्कर को चोट लगी थी, कंस्ट्रक्शन साइट से गिरा था, सारे इसीलिए सीपीआर दे रहा रेडी था। कर लीजिए। थोड़ा उसका इंजरी थोड़ा डेंजर था। हाँ, सीपीआर देना जरूरी था, इसीलिए सीपीआर दिया। आज फायर अभी वो स्टेबल है, सही है। सीपीआर जब डेंजर इंजरी होता है तभी दिया जाता है। अभी वर्कर स्टेबल है, हाँ सेफ है। जो नहीं आएंगे वो ना, उनका नहीं होना एब्सेंट, वो एब्सेंट है। हाँ, उनका एब्सेंट कर अबू बशर, मोहम्मद समीर। हमने हेड काउंट किया सर। हाँ। जितने सारे लोग प्रेजेंट है, जितने भी आज जितने भी आए हैं सभी लोग प्रेजेंट हैं। जितने भी लोग आए सारे लोग प्रेजेंट है, सारे के सारे, और सभी लोग ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट आप क्या कीजिएगा? ये फायर चीफ को सौंपेंगे। ओके, दे फायर चीफ को दे दीजिए आप रिपोर्ट। सिग्नेचर करना है ना। हाँ,
सिग्नेचर हम अपना कर देते हैं ना। कहाँ है आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आपने इवैक्यूएट करवाया सब? जी, मतलब कि जैसे बिल्डिंग में आग लगी, अलार्म बजा, तो मैं सेफली सारे एम्प्लॉयज़ जो थे सबको मैं सेफली असेंबली पॉइंट में इवैक्यूएट करवाया। तो सब ठीक था? इवैक्यूएशन कहीं कुछ? जी जी, इवैक्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे लोग इवैक्यूएशन असेंबली पॉइंट में सेफली पहुंच गए। तो एग्जिट पार्ट क्लियर था? जी हाँ, एग्जिट जी नहीं पूरा क्लियर था, एग्जिट पार्ट जो भी था पूरा एकदम क्लियरली था। ओके। एम्प्लॉयज़ को आने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। जी चलिए, और ये फर्स्ट एडर कुछ बताएंगे? स्ट्रेचर जो क्यों आपको ये स्ट्रेचर पे हम लोग लेकर आए, स्ट्रेचर करें, विक्टिम को उठा के सेफली फर्स्ट एडर के पास लेके पहुंचे। हाँ सेफली। तो उनको क्या हो गया था, क्या करना पड़ा? उनके हेड में चोट आ गई थी और पैर बैक पेन था। अच्छा, यही था। हम लोग फिर डायरेक्ट फर्स्ट एड एम्बुलेंस बुला कॉल किए, एम्बुलेंस आई। और फिर सीपीआर भी करना पड़ा? सीपीआर किसने किया भाई? थोड़ा बताएं आप, सीपीआर क्यों करना पड़ा, क्या हो गया था और कैसे किए? सर वर्कर थोड़ा डेंजर इंजरी में था, तो उसको ब्रीथिंग लेने में कम प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ। उसीलिए मैंने सीपीआर किया। हाँ, उसीलिए सीपीआर किया। अभी तो डेंजर जोन से बाहर है वर्कर। तो क्या किया, स्टेबल है। कैसे किया, थोड़ा बताएंगे? सीपीआर दिया 30 का 2x। वो क्या 30 कंप्रेशन? हाँ, कंप्रेसर दिया और 2 ब्रीथिंग दिया? हाँ, 2 बार ब्रीथिंग दिया। हाँ। तो फिर चालू हो गया उसका हाँ, सर्कुलेशन? चालू हो गया उसका सर्कुलेशन। अभी ये स्टेबल है। स्टेबल है। हाँ। चलिए ठीक है। तो फायर चीफ आप कुछ बताएंगे? मतलब पहले पूछ लीजिए फायर फाइटर से, उनका कुछ ये है, उनका फीडबैक क्या है? फायर फाइटर जो एक्सटिंग्विशर यूज किया और ठीक है, फायर फाइटर्स हाँ आप कहना चाहेंगे इसका? वो सही, मतलब जो कॉल किए थे वो सही टाइम पे कॉल किए थे और ज्यादा बड़ी आग नहीं लगी थी आपको बिल्कुल में। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था, वो करेक्ट था? लोकेशन हाँ वो करेक्ट था, सही था, सब कुछ सही था। फायर था, किचन फायर था। किचन फायर था। हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, छोटा फायर था, इसलिए जल्दी ज्यादा कंट्रोल हो गया। जी चलिए। आने वाले नहीं हुआ। अच्छा, पानी वो जो वाटर यूज किए थे वो किधर है? हाँ इधर है, इधर इनसे ही पूछ लीजिए इनको क्या करना पड़ा फायर। हाँ, तो आप जैसे कि आपने यूज किया फायर बुझाने के लिए फायर हाइड्रेंट का, तो क्या उसमें आग कितना ज्यादा आग था, कम था, क्या था? एक अभी सिर्फ लगा हुआ था थोड़ा, अभी उससे ज्यादा होने से हम लोग रोक दिए उसे और सही कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में था ना जी? वैसे तो कुछ ऐसा आपने गेट अच्छे से लगा दिया था जी निकलने से पहले? चलिए वेरी गुड। तो आपने फीडबैक ले लिया। फायर चीफ आप कुछ थोड़ा सा, चूंकि ऑलरेडी गैदरिंग है यहाँ पर असेंबली पॉइंट में, तो आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? मैं फायर चीफ शमीम, जैसा कि आपने देखा कि आज फायर ड्रिल हुआ है और ये फायर ड्रिल करने का इंटेंशन यही था कि कभी भी आग तो कभी भी लग सकती है, बट लेकिन आग लगने पे हमें किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है वो मैटर करता है। कि जैसे कि आपने देखा कि यूजुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन जब आग लगती है तो वो पैनिक हो जाते हैं और सफोकेशन से, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो लोग पैनिक होने की वजह से वो सही कदम नहीं उठा पाते हैं, उसकी वजह से हादसा हो जाता है। तो इंटेंशन यही था यहाँ कराने का फायर ड्रिल, कि जिससे पता चले कि क्या क्या करना है। जैसे कि आपने देखा, मैं समरी में आपको बता देता हूँ कि जब भी आग लगे तो पहला आपको काम ये करना है कि पहले आपको ऑन सेफ्टी देखना है। पहले अगर आप उस एरिया पे हैं तो आप अपना सेफ्टी देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अलार्म बजाना, अगर अलार्म का सिस्टम है तो आप अलार्म बजाइए, या तो फिर आप इन्फॉर्म कीजिए कि आग लग गई है, आप वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आग लगने पे पैनिक नहीं करना है, स्टैम्पेड नहीं करना है, आराम से निकलना है। जहाँ असेंबली पॉइंट है, हर असेंबली पॉइंट तो हर कोई जानते ही होंगे, बट फिर भी आप पर्सन से पूछ के असेंबली पॉइंट पे जाकर वहाँ पर आप असेंबल हो जाइएगा, रह जाइएगा। उसके बाद क्या करना है कि अगर कोई पर्सन आग लगी है तो आग को बुझाने की कोशिश करना है। जो फायर फाइटर्स आते हैं वो आगे का काम करेंगे, आपको कोऑपरेट करना है। और एक बार अगर आप बाहर आ गए तो कोशिश करना है कि वापस अंदर नहीं जाना है बिना फायर चीफ के सहमति से। तो आपको ये ध्यान रखनी है। अभी अगर सब कुछ ठीक है तो आप क्लियरेंस देंगे लोगों को वापस काम में? जैसा कि मैंने देखा कि फायर भी बुझ गई है और ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है, ना लोगों को नुकसान हुआ है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कंडीशन काफ़ी सही है, तो अब जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने अपने काम पे जा सकते हैं। चलिए वेरी गुड।